السلام علیکم۔ ناول کا یہ پارٹ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور ان پہ کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بابا، مجھے ہر حال میں وہ لڑکی چاہیے۔ مکرم، جس کی چوٹیں ابھی کسی حد تک ٹھیک ہو چکی تھیں، اس نے بیڈ سے اٹھتے اپنے باپ چودھری اکرام سے کہا، بیٹا جی، اتنی گرم گرم منہ میں نہیں ڈالتے۔ تم نے پہلے اس لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اوپر سے ملک دلاور کے بیٹے سے مار کھا کے آئے ہو۔ ہماری بڑی بےزتی ہو چکی ہے مکرم۔ اب اگر اس طرح کی تم نے کوئی بھی حرکت کی تو یہاں پر بہت زیادہ قتل ہو جائیں گے۔ چودھری اکرام، جو کہ اپنے بیٹے کے آشکانہ اور جذباتی کیفیت سے واقف تھا، اس نے اسے رسانیت سے سمجھانا چاہا۔ چودھری دلاور کے دونوں بیٹوں سے میں نے بدلہ نہ لیا تو مکرم نام نہیں میرا، اور اس لڑکی کو بھی میں حاصل کر کے رہوں گا۔ مکرم نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا، جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو؟ اکرام نے بیٹے کو دیکھ کر کہا تو مکرم نے غصے سے اپنا مکہ دیوار پر دے مارا۔ بیٹا جی، جن کے ساتھ تم مقابلے کی بات کر رہے ہو وہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں، حکومت تک بات چلتی ہے ان کی، اس لیے تم اب ایسی ویسی کوئی بھی حرکت نہیں کرو گے۔ تمہیں بدلہ لینا ہے تو میں اپنے طریقے سے لوں گا۔ اکرام نے بیٹے کو پیار سے پچکارا، ہم نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی، ہمارا بھی اس علاقے میں نام بولتا ہے۔ مکرم نے غصے سے ماتھے پر بر ڈال کر کہا، بس میں نے جو کہہ دیا تو کہہ دیا، اب تم کچھ نہیں کرو گے، جو کروں گا میں خود کروں گا۔ یہ کہہ کر چودھری اکرام باہر نکل گیا۔ مکرم اپنے ماں باپ کا اکلوتا اور حد سے زیادہ بگڑا ہوا بیٹا تھا۔ کتنی ہی لڑکیوں کی اس نے زندگی خراب کی تھی، خوبصورتی اس کی کمزوری تھی۔ مستجاب کو دیکھ لینے کے بعد اسے کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ اب اگلا سین۔ ملک اللہ داد کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ ادن تو 4 دن سے شہر گیا ہوا تھا۔ حسام ان کو لے کر اسپتال جا رہا تھا۔ مستجاب کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے دادا کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا کیونکہ ان کی حالت نازک لگ رہی تھی۔ ادن شہر میں ہی تھا جب اسے پتہ چلا تو اس نے اپنی ضروری میٹنگ کینسل کر دی۔ مستجاب، تم گھر چلی جاؤ، میں ادھر دادا کے پاس رکتا ہوں۔ حسام نے مستجاب کو دیکھ کر کہا تو اس نے نام میں سر ہلا دیا تو وہ آگے سے چپ کر گیا۔ ملک اللہ داد کی شوگر کنٹرول ہوئی تو طبیعت کچھ سنبھلی۔ اپنے پاس مستجاب کو بیٹھے دیکھ کر اسے پیار سے پکارنے لگے، آئی ایم سوری دادا جان، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ادن کے ساتھ شادی کے لیے راضی ہو جاتی، شاید آپ نے اس بات کو دل پر لے لیا ہے۔ وہ بڑی شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ دادا کو بے ساختہ اپنی پوتی پر پیار آیا۔ میری بچی، تمہارے بس میں ہو سکتا ہے۔ ان کی اب بھی وہی رٹ تھی۔ مستجاب اب آگے سے چپ کر گئی کیونکہ وہ مزید کوئی بات کر کے انہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ اندر آتا ادن دادا اور پوتی کی گفتگو کا آخری حصہ سن چکا تھا اور ساری گفتگو کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا۔ بلو جینز اور گرے کلر کی شرٹ میں وہ اپنی چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا، لیکن اسے دیکھ کر مستجاب کے دل میں نفرت کا ایک غبار آیا تھا۔ وہ بڑی فکر سے دادا کے پاس آیا اور ان کی پیشانی کو چوم لیا۔ میں آپ کو اچھا بھلا چھوڑ کے گیا تھا دادا، اچانک کیا ہوا کہ آپ کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی؟ اس نے فکر سے کہا تو مستجاب پہلو بدل کر رہ گئی کیونکہ وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بس تم نظر نہیں آئے اور تمہیں دیکھنے کے لیے طبیعت خراب کر لی اور شہر آ گیا۔ اللہ داد نے کہتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی۔ ان کی آنکھیں بھی غنودگی میں جا رہی تھیں۔ دادا جان، آپ کو شاید نیند آ رہی ہے، آپ آرام کریں۔ یہ کہہ کر اس نے مستجاب کی طرف دیکھا۔ تم میرے ساتھ ذرا باہر آؤ، اس نے حکم دینے والے انداز میں کہا تو اس کے اندر ہی وہ بے چو تاب کھا کر رہ گئی، لیکن وہ دادا کے سامنے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ وہاں سے اٹھ کر اس کے پیچھے چلی آئی۔ جب میں ادھر آیا تھا تو دادا جان اچھے بھلے تھے، اچانک ایسا کیا ہوا کہ ان کی طبیعت اس قدر بگڑ گئی؟ اس نے تفتیشی انداز میں کہا تو مستجاب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ مسٹر ادن، آپ مجھ سے کس قسم کے لہجے میں سوال کر رہے ہیں؟ ان کی طبیعت کا میری وجہ سے خراب ہوئی ہے؟ اس نے انتہائی سرد انداز میں دیکھتے ہوئے کہا جس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات تھے۔ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے؟ اس نے اس کے غصے بھرے انداز کو اگنور کرتے ہوئے بڑے آرام سے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا، مائی فٹ، جو مرضی سمجھو مسٹر۔ یہ کہہ کر اندر جانے لگی تو ادن نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ لیا اور غصے سے اس کی غلافی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ چھوڑو مجھے جنگلی انسان! اس نے اپنے بازو کو آزاد کروانا چاہا لیکن مقابل کو پرواہ کب تھی۔ دادا جان کیا کہہ رہے تھے تم سے کہ تمہارے بس میں ہے؟
उसकी आंखों में गुस्से से शोले निकल रहे थे। ये हॉस्पिटल है, तुम्हारा घर नहीं। तुम इस तरह फसाद मचा रहे हो, बदतमीज इंसान, छोड़ो मेरा बाजू। उसने उसे नफरत से देखते हुए कहा, जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बताओगी मैं तुम्हारा बाजू नहीं छोड़ूंगा। वो जवाब लिए बगैर उसकी जान छोड़ने को तैयार नहीं था। सुनना चाहते हो तो सुनो। वो चाहते हैं कि मैं तुम जैसे जंगली इंसान के साथ शादी कर लूं, जो मैंने कहा कि ये मेरे बस में नहीं है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर बड़े नफरत भरे तासुरात थे। मुझसे पूछे बगैर वो इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हैं? उदयन गोया शौक की हालत में था। ये कहते हुए उसने उसके बाजू छोड़ दिया और जाकर कुर्सी पर बैठ गया। हो सकता है तुमसे पूछकर ही तुम्हारी मर्जी से ये बात की हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना? उसने एक लफ्ज चबा कर कहा तो उदयन का दिल क्या उस लड़की को जान से ही मार दे। तुम होश में तो हो? क्या कह रही हो? तुम जैसी अकल से पैदा लड़की को तो मैं एक दिन की गर्लफ्रेंड भी ना रखूं, और तुम सारी जिंदगी की बात कर रही हो। उसने उसे देखते हुए तौहीन अमीज अंदाज में कहा। तो उस एहसास तौहीन से उस हिजाब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मैंने यहाँ रुककर ही बड़ी गलती की है। आप जैसे इंसानों के साथ तो मैं एक मिनट भी ना रहना चाहूँ मिस्टर उदयन हैदर। मैं ही पागल थी कि दादा की मोहब्बत में इधर रुक गई, जिनको किसी दूसरे इंसान की इज्जत करना ही नहीं आती। मेरे पापा का बहुत अच्छा फैसला था जो आप लोगों से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। शिद्दत जब से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, गुलाबी आंखों में आंसू हलकोरे ले रहे थे, जिस पर लम्हा भर को उदयन को अपने अल्फाज की संगीनी का एहसास हुआ। लेकिन दूसरे ही लम्हे वो खुद पर काबू पा चुका था। वो ये कहकर दादा जान के रूम में चली गई और उदयन इस बात पर परेशान था कि दादा जान ने इतनी बड़ी बात उससे पूछे बगैर कर कैसे ली। अब अगला सीन। मैडम, आपसे कोई मिलने आया है। वो ऑफिस में बैठी अपना काम कर रही थी कि उसे चाय देते हुए मुलाजिम ने कहा। मुझसे कौन मिलने आ सकता है? ठीक है, अंदर भेजो। यह कहकर वो दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई। अंदर आने वाली शख्सियत को देखकर उसे सब समझ आ गई और अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। कुछ सोचते हुए उसकी उंगलियां अपने मोबाइल पर तेजी से हरकत करने लगी। वेलकम अनायत साहब, उसने रसमन मुस्कुराते हुए कहा। बैठे। ये कहकर उसे बैठने का कहकर वो खुद भी अपनी सीट पर बैठ गई। रजा साहब तो कॉल ही अटेंड नहीं कर रहे और वो ऑफिस में भी नहीं है, तो मैंने सोचा आपसे ही मिलता चलूं। इनायत ने अपने आने की वजह बताई जो उसको बखूबी समझ आ गई। जी फरमाए, क्या खिदमत कर सकती हूँ मैं आपकी? उसने संजीदगी से कहा तो मुकाबिल के चेहरे पर बड़े सख्त तासुरात थे। मैं बस यही चाहता हूँ मिस जायशा, ये जो आप मेरे ऊपर प्रोग्राम कर रही हैं इनको करना बंद कर दें। उसने बड़े सख्त लहजे में कहा तो वो भी अपने गुस्से से सीट से उठ खड़ी हुई। सर, जितनी मेहनत आप इस प्रोग्राम को रुकवाने पर कर रहे हैं, अगर इतनी मेहनत अपने हल्के पे काम पर की होती तो मैं आज आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके हक में प्रोग्राम कर रही होती। जायशा ने दो टोक अल्फाज में बड़े नरम अंदाज में कहा तो इनायत खान गुस्से से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। इसका मतलब है आप प्रोग्राम करने से बाज नहीं आएंगी? वो गुस्से से धाड़ा था। सर, ये न्यूज़ चैनल है। न्यूज़ चैनल और एक सहाफ़ी की ताकत से आप शायद वाकिफ नहीं हैं। आप मुझे मेरे ही ऑफिस में खड़े होकर धमकियां लगा रहे हैं। मैं आप पर एफआईआर भी कटवा सकती हूँ। उसने बड़े आराम से उसे सब समझाया तो इनायत खान के गुब्बारे से हवा निकल गई। मैं तो बस ये कह रहा था कि आप मेरे खिलाफ क्यों हो गई हैं। आपके लहजा नरम था। देखें, हमारी किसी से भी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। ये मुल्क आपका भी तो है। लोगों ने आप पर एतमाद करके आपको वोट दिए हैं। आप उनके एतमाद को ठेस क्यों पहुंचा रहे हैं? एक शर्त पर मैं ये प्रोग्राम करने रोक सकती हूँ। उसने अपने गर्दन को हल्का सा झटका देते हुए कहा तो इनायत खान ने सवालिया नजरों से उसे देखा। आप जितने पैसे चाहती हैं मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। इनायत उसकी बात को गलत रंग दे गया था, जिस पर जायशा बेसाख्ता कहकर लगा बैठी। सर, हर इंसान काबिल खरीद नहीं होता। आप मेरी बात का गलत मतलब समझ बैठे हैं। आप मुझे सारी दुनिया के खजाने भी दे दें तो मैं सच कहने से भी कभी नहीं घबराऊंगी। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप अपने इलाके में लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया करें और स्कूलों की हालत ठीक करें। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं वो पहली एंकर होंगी जो आपके हक में प्रोग्राम करूंगी। जायशा ने अपनी बात की वजाहत की तो अनायत खान कुछ लम्हे के लिए गहरी सोच में पड़ गया। इसका मतलब है कि आप मुझे अपने कहने पर चलाना चाहती हैं। लहजे में सटपन था। मैं क्यों आपको अपने मुताबिक चलाऊंगी? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आप लोगों के मुताबिक चलें, उनके मसाइल हल करें। जायशा ने पूरे एतमाद तरीके से इनायत की आंखों में आंखें डालकर कहा तो उस लड़की की जुर्रत पर हैरान रह गया। खूबसूरत होने के साथ साथ बहादुर भी हो। आपके लहजे में तारीफ थी जिस पर जायशा ने कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं अपनी तारीफ पर कभी खुश नहीं होती सर, उसने सटपन से कहा।
ٹھیک ہے, چلتا ہوں کچھ دنوں تک. میں اپنے حلقے میں کام کرنا شروع کر دوں گا اور آپ کا انتظار کروں گا کہ کب آپ میرے حق میں پروگرام کریں گی. اس نے رسمی سی مسکراہٹ سے کہا. وہ بھی ایک گھاک سیاستدان تھا. مقابل جو لڑکی تھی وہ عام نہیں لگ رہی تھی اور اب مجھے جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا تھا. اب اگلا سین. ملک اللہ داد 2 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد گھر جانے کی ضد کرنے لگے تو مجبوراً ہسپتال والوں نے انہیں ڈسچارج کر دیا. حسام کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی, اس لیے ربیہ اپنے بچوں سمیت حویلی آ گئی تھی. مستجاب 2 دن دادا کے ساتھ اسپتال میں رہ کر تھک گئی, اس لیے ربیہ سے رسمی سلام دعا کر کے اپنے کمرے میں آرام کے لیے چلی گئی. ربیہ کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا. بیٹی 5 سال کی تھی جبکہ بیٹا 3 سال کا تھا. ربیہ کا رویہ بھی مستجاب کے ساتھ سرد سا تھا. البتہ ربیہ کی نند روشنا جو اس کے ساتھ ہی آئی تھی وہ بڑی گرم جوشی سے مستجاب کے ساتھ ملی. ادن حیدر شہر میں ہی رک گیا تھا کیونکہ اس کی بہت ضروری میٹنگ تھی. گھر میں شادی کی گہما گہمی تھی. تسلیم اپنے کمرے تک محدود تھی. مستجاب سو کر اٹھی تو اسے چائے کی شدید طلب ہوئی. ملازمہ سے کہہ کر اس نے چائے منگوائی اور برآمدے والی گرل کے پاس کھڑے ہو کر پینے لگی, جہاں سے نیچے کے ہال کا سارا منظر واضح نظر آتا تھا. ربیہ کے بچے کھیل رہے تھے اور بچوں کی باتیں سن کر انجوائے کر رہی تھی. کھیلتے کھیلتے ربیہ کے بیٹے ارم کا سیڑھی پر چڑھتے ہوئے پاؤں پھسلا اور وہ نیچے زمین پر گر گیا. مستجاب جو کھڑی ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی, چائے کا کپ ادھر ہی رکھ کر تیزی سیڑھیوں کی طرف بھاگی. جا کر ارم کو اپنی گود میں اٹھا لیا. 2 ملازمیں بھاگ ہی ان کی طرف آئیں. اس کو گھٹنے اور سر کے اوپر ہلکی سی چوٹ لگی تھی. مستجاب اس کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئی. وہاں سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور ایک ٹیوب نکال کر اسے زخموں پر لگانے لگی. سارا بھی اپنے بھائی کے پیچھے اس کے کمرے میں آ گئی اور ہم ٹکر ٹکر اس انجان اور مہربان لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس کی اتنی کیئر کر رہی تھی. آپ کی ماما کدھر گئی ہیں؟ اس نے سارا کو دیکھتے ہوئے کہا. آنٹی وہ شاپنگ کے لیے گئی ہوئی ہیں. سارا بھی اسے بڑی امپریس نظر آ رہی تھی. جب تک آپ دونوں کی مما نہیں آ جاتی آپ ادھر ہی رہو گے, اوکے؟ اس نے ارم کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے کہا تو اس نے معصومیت سے سر ہلا دیا. آنٹی آپ ڈاکٹر ہیں کیا؟ سارا نے اپنے دونوں ہاتھ گالوں پر رکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھا. ہاں میں ڈاکٹر ہوں. اور آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتی ہیں؟ اس نے سارا کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے پیار سے پوچھا. میں بھی بڑے ہو کر ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. پتہ ہے مجھے انجیکشن لگانے کا اتنا شوق ہے, میرا دل کرتا ہے میں سب کو انجیکشن لگاؤں. اس نے معصومیت سے کہا تھا. مستجاب مسکرانے لگی. تم ڈاکٹر مت بننا, تم تو مجھے انجیکشن لگاؤ گی. ہم نے اپنی توتلی زبان میں کہا تو وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگی. وہ دونوں بچوں سے بہت دیر تک باتیں کرتی رہی جو اسے بہت زیادہ فری ہو چکے تھے. اتنے میں ربیہ اور راشدہ بیگم باہر سے شاپنگ سے بیگ سے لدی بدی گھر آئیں. تھوڑی دیر میں ربیہ نے ملازمہ سے بچوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ دونوں مستجاب کے کمرے میں ہیں, جس پر دونوں ماں بیٹی کے ماتھے پر بل پڑ گئے. بیبی اور وہ سیڑھیوں سے گر گئے تھے. ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے کہا تو راشدہ بیگم اسے خوشمگین نگاہ سے دیکھتی ہوئے مستجاب کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں. ربیہ جب کمرے میں گئی تو وہ دونوں بڑے مزے سے اس کے بیڈ کے اوپر لیٹ کر اسے باتیں کر رہے تھے اور وہ ان کی باتوں پر ہنس رہی تھی. کیا ہوا ہے ارم کو؟ ربیہ تڑپ کر کہتی ہوئی ارم کی طرف بڑھی. تھوڑی سی گھٹنے اور سر کے اوپر چوٹ لگی ہے, میں نے پٹی کر دی ہے, اتنی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. مستجاب نے نرمی سے کہا. اس نے ارم کو اٹھایا تو مستجاب کے پاس بیٹھنے کی ضد کرنے لگا تو وہ حیرت سے اپنے دونوں بچوں کو دیکھنے لگی جو تھوڑی ہی دیر میں اس سے اتنے اٹیچ ہو چکے تھے. ربیہ کے دل میں ایک دم سے مستجاب کے لیے تشکر کے جذبات ابھرے. آپ نے میرے بیٹے کا خیال رکھا, شکریہ. اس نے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ نرمی سے مسکرا دی. اس میں شکریہ ادا کرنے والی کون سی بات ہے؟ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور یہ میرا فرض ہے. مستجاب نے ارم کے گالوں کو پیار سے چھوتے ہوئے کہا تو ربیہ دل ہی دل میں اپنے سابقہ رویوں پر شرمندہ ہوئی. راشدہ بیگم نے آگے بڑھ کر ارم کو اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گئی اور ربیہ اپنی ماں کے رویے پر شرمندہ ہوتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی. اب اگلا سین. دوسرے دن جو گھر لوٹا تو سب سے پہلے دادا کو دیکھنے گیا. وہ سو رہے تھے اس لیے فریش ہونے کمرے میں چلا گیا. فریش ہو کر نیچے آیا تو بچے ماموں ماموں کہہ کر اس کے ساتھ لپٹ گئے تو انہیں پیار کرنے لگا. یہ چوٹ کیسے لگی؟ وہ ارم کو گود میں اٹھاتے ہوئے بولا. کل میں تیلیوں سے گر گیا تھا تو مجھے آنٹی اٹھا کر مجھے ٹھیک کر دیا. اس نے اپنی توتلی زبان میں کہا. کون سی آنٹی نے آپ کو ٹھیک کر دیا؟ ادھر نے دلچسپی سے اسے پیار کرتے ہوئے کہا. وہ جو اتنی پیاری ڈاکٹر آنٹی ہیں. سارا نے آگے بڑھ کر کہا. اس کی نظروں میں مستجاب کا چہرہ گھوما. کیسا ہے میرا بھائی؟ ربیہ کہتے ہوئے ایک دم سے اس سے لپٹ گئی. آپ آ جائیے.
उसने मुस्कुराते हुए सवाल किया। अंदर आती रुशना उस वजाहत के पैकेट को देखकर अंदर ही अंदर उसकी नजर उतार रही थी। मैं तो कल की आई हुई हूँ, तुम्हें तो अपने बिजनेस से ही फुर्सत नहीं है। रबिया ने गिला किया तो वो मुस्कुराने लगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? रुचना ने उसे नजर पर देखते हुए सवाल किया। ठीक हूँ, आप सुनाओ, आप कैसी हो? उदय ने सर हिलाते हुए पूछा। मैं भी ठीक हूँ, आप बड़े बिजी रहते हैं। रुचना के सवाल में हल्का सा गिला था जिसको उसने नजरअंदाज कर दिया। आप मुझसे बातें कर लें, उनसे क्यों कर ले हैं? अरम ने कहा तो सबकी उस बात पर हंसी निकल गई। इसको क्या हुआ? उदय ने अरम की तरफ इशारा करते हुए पूछा। कल सीढ़ियों से गिर गया था, भला वो मुस्तजाब का जो घर पर ही थी उसी वक्त उसका जख्म देख लिया। उदय ने मुस्तजाब के जिक्र पर बड़ी हैरानी से अपनी आप ही के बदलते जज्बात महसूस किए थे। थोड़ी देर में वो दादा के कमरे में आया तो वो नमाज पढ़ रहे थे। कैसा है मेरा बच्चा? दादा नमाज पढ़कर उसके पास ही बैठ गए। ठीक हूँ, और आप बहुत कमजोर हो गए, बिल्कुल ख्याल नहीं रखते अपना। उसने प्यार से दादा के लागर वजूद को देखकर कहा। शुक्र है रब ताला का जिसने सांसें दी हुई हैं अभी तक। वो ये कहकर लेटने लगे तो उदन ने आगे बढ़कर उन्हें लेटने में मदद दी। उदन दादा से बात करना चाहता था लेकिन उनकी तबीयत के पेश नजर बात करने से हिचकिचा रहा था। कोई बात करना चाहते हो मुझसे? उन्होंने उसकी कैफियत नोट कर ली जिस पर उनके अंदाजे पर हैरान रह गया। दादा जान, बात तो करना चाह रहा था लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम जौन सी बात करना चाहते हो करो मुझसे, इसमें हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने उसकी हिचकिचाहट को दूर करना चाहा। दादा जान, आपने मुझसे पूछे बगैर शादी के मुतल्लिक मुस्तजाब से इतनी बड़ी बात कैसे कर ली? उदय ने संजीदगी से कहा। उन्होंने एक गहरी सांस खारिज की। देखो बेटा, तुम दोनों मुझे जान से ज्यादा अजीज हो। मुझे तुम पर एतबार है कि तुम मेरे फैसले के खिलाफ नहीं जाओगे, इसलिए तुमसे पूछे बगैर मुस्तजाब से बात कर ली। अगर तुम्हें बुरी लगी तो माजरत चाहता हूँ। उन्होंने आखिर में जज्बाती होते हुए कहा। अब मुझे इमोशनल ब्लैकमेल ना करें। आपको पता है आपके चहेती हम सबको बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो वो शादी के लिए कैसे राजी हो सकती है? लहजा बहुत संजीदा था जिस पर दादा ने उसके चेहरे की तरफ बड़े गौर से देखा। अगर वो आप सब लोगों को नापसंद करती है तो आप सब लोग भी तो उसे नापसंद करते हो। तुम बताओ, तुम उसे पसंद करते हो? इस पूरी हवेली में सिवाय मेरे उन दोनों माँ बेटी से किसी ने अच्छे तरीके से बात की है कभी? उनके लहजे में तलखी थी जिसे उदन ने भी अंदर तक महसूस किया और उदन को लाजवाब करके रख दिया था। दादा जान, जब मैंने उसे अगवा होने से बचाया फिर भी मुझे गलत समझती रही, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? उदन ने अपनी पोजीशन क्लियर करना चाही। वो तो हमारी इज्जत है, उसे बचाना तुम्हारा फर्ज था, लेकिन मैंने अक्सर ये नोट किया है तुम्हारा उसके साथ रवैया बहुत सर्द होता है। दादा ने उसे हल्का सा घिरका तो उसके दिल में मुस्तजाब के लिए नफरत के जज्बे सर उभारने लगे। दादा जान, ये जो आपकी लाडली पोती है ना, हर वक्त मुझ पर तंज के निश्चर चलाती रहती है, तो बदले में क्या मैं उसे फूलों के हार पहनाऊं? ये बात करते हुए उसका हलक तक कड़वा हो गया जिसको मलिक अल्लाह दाद ने बड़ी गहराई से महसूस किया। तुम उसके साथ अपना रवैया बदलो, इतनी प्यारी लड़की है और वो तुम्हें कभी भी नहीं मिल सकती। वो बाजिद थे। मुझे आपकी प्यारी लड़की से कोई लेना देना नहीं। आपकी आवाज में गुस्सा था जब जिस पर मलिक अलादाद बच्चों की तरह मुंह फुला के बैठ गए। मेरे प्यारे दादा जान, आप क्यों हम दोनों को अंधे की आग में जलाना चाहते हैं? आपकी आवाज में गड़गड़ाहट थी। ठीक है भाई, जैसे तुम लोगों की मर्जी। तुम दोनों ही ऐसा चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब तो खुदा से दुआ है कि वो तुम दोनों को मिलाने का कोई सबब पैदा कर दे। उन्होंने बेचारगी से कहा तो उसे अपने दादा के मंतक पर सर हिलाना पड़ा। अच्छा दादा जान, दुआ करें कल मुझे बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ सिटी का अवार्ड मिल जाए। उसने बात को बदलने की कोशिश की। अरे बेटा, मैं तो बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द वर्ल्ड के लिए दुआ गो हूँ। बस साथ ये खुदा से दुआ है कि तुम अल्लाह की नज़र में भी एक बेस्ट इंसान बनो। दुनियावी कामयाबी तो एक वक्ती चीज होती है, असल कामयाबी तो ये है कि तुम एक अच्छे इंसान बनो। उन्होंने अपने पोते को प्यार से देखते हुए कहा। अब अगला सीन। दूसरे दिन शहर के महंगे तरीन हॉल में एक बहुत बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें शहर के टॉप बिजनेसमैन मौजूद थे। पूरा मीडिया भी कवरेज के लिए आया हुआ था। जायशा अपने चैनल की नुमाइंदगी कर रही थी।
उधर हैदर को बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला तो पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। हवेली में दीवार पर नस्ब बड़ी एलईडी पर यह खबर चली, पूरी हवेली में खुशी की लहर दौड़ गई। मुस्तजाब शोर की आवाज सुनकर बाहर आई तो टीवी पर चलती न्यूज पट्टी को देखकर लम्हा भर को ठटकी। तकरीब में सहाफियों के सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। उधर हैदर बड़े पुरएतमाद तरीके से सब सहाफियों के सवालों के जवाब दे रहा था। सर, ट्रू वन रोशन पाकिस्तान वालों की तरफ से जायशा अली। पहले तो आपकी कामयाबी पर मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। दूसरा, मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि आपके बाबा मुल्क के नामवर सियासतदान हैं और अपने हल्के से ज्यादातर वही कामयाब होते हैं। क्या वजह है कि आज तक वहां पर कोई बड़ा तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं कर सके, जबकि आप उनकी औलाद होने के नाते तरक्की कर रहे हैं? सवाल था या कोई बम जो उदन हैदर पर गिरा था, क्योंकि उसने अपनी शनाख्त छुपाकर अपनी पहले कामयाबी हासिल की थी, जिसके वो लड़की मिट्टी में मिलाने पर तुली हुई थी। उदन हैदर लम्हे भर को परेशान हुआ, लेकिन उसने जल्द ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया था। देखें, मेरे वालिद का मुतल्लिक सवाल पर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसे सवालात आप मेरे वालिद साहब से ही करें। मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे सियासत में दिलचस्पी है। उसने पूरा एतमाद तरीके से कहा तो जायशा को बहुत गुस्सा आया। लेकिन सर, आप लोगों के मसले हल करने में तो कोई दिलचस्पी ले सकते हैं ना? इस दफा जायशा के लहजे में तलखी थी। उधर हैदर की भवें गुस्से से तंग गईं। उसका दिल किया कि एक लम्हे में इस लड़की को यहाँ से दफा करते, जिसने उसकी पहली कामयाबी का नाकाम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इंशाल्लाह जल्द हम अपने गांव में तरक्याती मंसूबा शुरू करेंगे, और ये मैं अपने वालिद नहीं बल्कि अपने बिहाफ पर कह रहा हूँ। ये कहकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके उठ गया कि वो लड़की उसे अपनी सारी मेहनत पर पानी फेरती हुई नजर आ रही थी। टीवी के सामने बैठी मुस्तजाब उस लड़की की हिम्मत को दाद दे रही थी। व्हाट अ ब्रेव गर्ल! ये लोग समझते हैं कि सब इनकी राया है। उसने अपनी माँ को देखते हुए कहा। तस्लीम भी टीवी की तरफ मुतवज्जा हुई, जहां पर उदन हैदर की कामयाबी की और जायशा के सवाल की बहस हो रही थी। दूसरी तरफ उदन का मूड बुरी तरह ऑफ हो चुका था। वो गुस्से से प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकला और अपने सेक्रेटरी को इशारा करते हुए गाड़ी में आ बैठा। ज़ीशान, कौन है ये लड़की? उदन ने गुस्से भरे अंदाज में कहा। सर, एंकर जायशा अली है, अभी नई नहीं है, लेकिन जब बोलती है तो सबकी बोलती बंद कर देती है। बड़े बड़े सियासतदानों को आजकल धूल चटा रही है। निशान ने वजाहत दी तो उदन ने गुस्से से अपने हाथों की उंगलियां अपनी कनपटी पे मारी। अंदर भांबड़ जल रहे थे, क्योंकि 5 साल की मेहनत के बाद आज वो इस मकाम पर पहुंचा था कि अपनी पहली कामयाबी हासिल कर सके। लेकिन वो अपनी पहली कामयाबी को सही तरह महसूस भी नहीं कर पाया था कि उस लड़की ने उसे वहां से उठ जाने पर मजबूर कर दिया। ज़ीशान, तुम इधर ही उतरो। ड्राइवर, गाड़ी गांव की तरफ मोड़ दो। कुछ सोचते हुए उसने ड्राइवर को हुक्म दिया, क्योंकि उसका बाप हवेली में ही मौजूद था। अब अगला सीन। बाबा, आज सिर्फ आपकी वजह से वो मामूली सी एंकर और पूरे मीडिया के सामने शर्मिंदा हुआ हूं मैं। मेरे पास इसके सवाल का कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि जवाब होता तो मैं देता ना। अगर आपने कोई काम नहीं करना होता तो इस सियासत का गंदा खेल क्यों खेल रहे हैं? आज इतने सालों के बाद, मेहनत के बाद मुझे पहली कामयाबी मिली है, लेकिन अफसोस सब आपकी वजह से खराब हो गया। आंखों में शोले लिए वो अपने बाप के सामने खड़ा हुआ धाड़ रहा था। हवेली के अफराद और मुलाजमीन जो उसकी कामयाबी पर खुश हो रहे थे, अभी उसको गुस्से में धाड़ते हुए देखकर हैरान हो गए। मुस्तजाब उदन का ये रूप देख अपनी जगह वर्ता हैरत में डूब गई। दिलावर मलिक अपनी जगह शिश्तर खड़ा था, क्योंकि आज उससे उसका कोई हरीफ नहीं बल्कि उसका बेटा जवाब मांग रहा था। देखो बेटा, मुखालिफ पार्टी ने तुम्हारी कामयाबी खराब करने की कोशिश की है, और जिसने भी ये कोशिश की है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दिलावर ने अपने बेटे को ठंडा करना चाहा, लेकिन उदन पर तो आज गुस्सा सवार था। आप डॉन है क्या जो छोड़ेंगे नहीं? अगर सियासत के काबिल नहीं है तो ना करें, छोड़ दें ये सब। ये कहता हुआ अपने रास्ते में पड़ी कुर्सी को ठोकर मारता हुआ कमरे में चला गया, जबकि दिलावर का बस नहीं चल रहा था कि वो उस लड़की को इस दुनिया से उठा दे। कहा भी था कि अब्बा जान के साथ ज्यादा ना बैठने दें, लेकिन मेरी बात की तो कोई अहमियत ही नहीं है। अब रंग लिया है ना उन्होंने उसको अपने रंग में। राशिदा ने नफरत से कहा तो दिलावर ने उसको गुस्से भरे अंदाज में देखा। तुम जैसी जाहिल औरत हमेशा ताने ही दे सकती है। दिलावर मलिक गुस्से से कहता हुआ बाहर निकल गया। अब उसको अपने डेरे पर जाना था, क्योंकि अपनी फितरत के मुताबिक उसने उस लड़की का भी कोई बंदोबस्त करना था, जिसकी वजह से आज उसका बेटा उसके सामने खड़ा हो गया था। अब अगला सीन। जायशा, बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। तुम्हें नहीं पता है दिलावर मलिक कितना खतरनाक आदमी है, जिसकी तुमने आज शाम ही खराब कर दी है। हमदानी उसके ऑफिस में बैठा चाय और बिस्किट के साथ इंसाफ कर रहा था। सर, मैं तो हर रोज ही किसी ना किसी की शाम खराब करती हूँ।
जायशा के हाथ तेजी से फाइल पर कुछ लिखने में भी मसरूफ थे। वैसे तुम्हें कैसे पता लगा कि उदन हैदर दिलावर मलिक का बेटा है? हमदानी उसकी मालूमात पर हैरान था, जिस पर जायशा के मलिक पर एक मुस्कुराहट दर आई। सर, इस फील्ड में हूं तो क्या बड़े मगरमच्छों के बच्चों का भी हिसाब नहीं रख सकती? उसने जाया अंदाज में कहा। पता है जायशा, तुम उन लोगों में से हो जिनको शोहरत चंद दिनों में ही मिल गई है। हमदानी के लहजे में सताइश थी। रजा साहब का क्या ज्यादा दिन रुकने का प्रोग्राम है न्यूयॉर्क में? जायशा पेंसिल फाइल के ऊपर रखते हुए बोली। रजा कुछ दिनों के लिए अपने वालिदैन से मिलने न्यूयॉर्क गया हुआ था और पीछे चैनल की सारी जिम्मेदारी एजाज हमदानी और जायशा के सपुर्द कर दी थी। हाँ, याद आया, रजा साहब का फ़ोन आया था। वो कह रहे थे कि जायशा को बोलना अभी मैं मुल्क से बाहर हूँ, इसलिए हाथ हौला रखे। ये ना हो कि मेरे आने तक चैनल ही बंद हो चुका हो। हमदानी ने कहका लगाते हुए कहा तो जायशा के होंठों पर मुस्कुराहट रिंग गई। ये सब तो मैं पहले ही तय कर चुकी हूँ, अब इस मुसीबत को तो झेलना ही होगा। वो अपने तरफ इशारा करते हुए बोली तो हमदानी को लगा कि वो उस लड़की को कभी भी समझ नहीं पाएगा। अब अगला सीन। फिरदौस भी टीवी पर खबर सुन चुकी थी और गुस्से और परेशानी की मिली जुली कैफियत में कमरे के चक्कर काट रही थी। जायशा घर लौटी तो अपनी माँ को बेचैन देख परेशान हुई। अम्मा, कितनी दफ़ा बोला है कि अगर पहले परेशान होना होता है तो टीवी ना देखा करें, कोई ड्रामा वगैरह लगा लिया करें। जायशा ने माँ को प्यार से बेड पर बिठाते हुए कहा। तुम्हें मैंने समझाया था ना कि उनसे दूर रहना, लेकिन तुमने मेरी बात को अहमियत ही नहीं दी। फिरदौस ने चीख कर कहा तो जायशा को अपनी माँ से इस कदर शदीद रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। अम्मा, ये सब मेरी फील्ड का हिस्सा है, आप क्यों इतना हाइपर हो रही हैं? उसने माँ को ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन फिरदौस गुस्से से थर थर काँप रही थी। अम्मा, आप एक बहादुर बेटी की माँ हैं, मैं आपका सारा डर निकाल कर रहूंगी। उसने आंखों में शोले लिए अज़म से कहा तो फिरदौस ने अपना माथा पीट लिया। जायशा, मैं तुम्हें उन लोगों से बचाना चाहती हूँ, मेरे पास तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं है। अम्मा ने बेचारगी से कहा। अम्मा, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें, कुछ भी नहीं होगा। उसने माँ का बाजू थपथपाया। बेटा, तुम्हें नहीं पता, तुम भेड़ों के छत्ते में हाथ डाल रही हो। फिरदौस ने टूटे हुए लहजे में कहा। अम्मा, अब तो मैं हाथ डाल चुकी हूँ, अभी या ये मुझे लड़ेंगे या मैं इनको लड़ूंगी, और ये आने वाला वक्त बताएगा कि भेड़ों के छत्ते में हाथ किसने डाला है। आज से 23 वर्ष पहले दिलावर मलिक ने, या आज उसके बेटे को छेड़कर मैंने। उसके आंखों और लहजे से आग के ऐसे शोले निकल रहे थे जिसमें वो दिलावर मलिक और उसके पूरे खानदान को जाकर राख कर देना चाहती थी। अब अगला सीन। आखिर दादा जान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब भी मुझे कोई कामयाबी मिलती है तो मेरे बाप की परछाई पड़ते ही वो सारी खुशी खराब हो जाती है। रात को वो दादा के साथ बैठकर अपने दिल के फफोड़े फोड़ रहा था। उसको अभी तक वो वक्त याद, जब उसने कॉलेज में टॉप किया था और जब वो इनाम लेकर स्टेज से उतरा तो एक लड़के ने उसे बाप के करप्ट होने का ताना दिया था, जिस पर उदर ने उसको एक थप्पड़ जड़ दिया था। उदर और उस लड़के में सख्त किस्म की हाथापाई हुई थी और पूरे कॉलेज में यह खबर मशहूर हो गई थी, जिससे उसे काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। इसके बाद तो दिल बर्दाश्ता होकर पाकिस्तान छोड़कर पढ़ाई के सिलसिले में लंदन चला गया था। मेरे बच्चे, हर इंसान अपने अमाल का बोझ खुद उठाता है। मैंने दिलावर को हर मौके पर समझाया, लेकिन मेरी बात उसने कभी भी नहीं सुनी। मैंने तंग आकर उसको कहना ही छोड़ दिया, क्योंकि बार बार एक बात कहने से भी बात बेअसर हो जाती है। तुम दिल बर्दाश्ता मत हो, अल्लाह ने इसमें कोई बेहतरी रखी होगी। मलिक अल्लाह दाद ने दिल गिरफ्तगी से अपने अजीज अजान पोते को देखकर कहा तो बेख्तियार अपने दादा के हाथों को चूम गया। पता है, आपकी बातें मेरे लिए ऑक्सीजन है। मैं जब ज्यादा परेशान होता हूँ तो आपके पास आ जाता हूँ। इतने में अरम भागता भागता हुआ आया और मलिक अल्लाह दाद के पीछे आकर छुप गया। उदर ने कुछ कहना चाहा तो उसने उसको इशारे से चुप करवा दिया। किधर हो शरारती पटाखे? मुस्तजा भी कहती हुई दादा के कमरे में दाखिल हुई तो उदन को देखकर उसका चेहरा तन गया। एकदम से चेहरे पर बहुत नागवार तासुरात उभरे जो उसकी नजरों से पोशीदा न रह सके। मैं फिर आ जाऊंगी दादा जान। ये कहकर मुड़ने लगी तो पीछे से आकर अरहम ने उसे पकड़ लिया। यू आर अ लूजर, यू आर अ लूजर, आप मुझे नहीं पकड़ पाई। ये कहता हुआ मुस्कुरा के उसके साथ लिपट गया तो उसे प्यार करने लगी। अरहम को देखकर सारे जहां का प्यार उसके लहजे में दर आया था। ब्लू कलर का सूट पर ब्लू ही जीन्स पहने, गले में स्कार्फ लिए वो बड़ी अच्छी लग रही थी। बालों का जूड़ा बनाया गया था जो कि अरहम को प्यार करते हुए खुल चुका था, जिस पर उदन हैदर की नज़र एक लम्हे को पलटना ही भूल गई। मलिक अल्लाह दाद की घाक नज़रों से मंजर पोशीदा न रह सका।
मुस्तजाब, इधर आओ मेरे पास। उन्होंने प्यार से पुकारा तो उसको मजबूरन बैठना ही पड़ा। कोई नाराजगी चल रही है तुम दोनों के दरमियान? उन्होंने दोनों को देखते हुए पूछा। दादा जान, हम राजी ही कब थे जो नाराज होने लगे? मुस्तजाब ने तलखी से कहा। तुम दोनों आपस में अच्छे से रहो। पता है तुम दोनों में मेरा दिल धड़कता है और मुझे जान से ज्यादा अजीज हो। तू अपने दादा को अगर खुश देखना चाहते हो तो एक खींचातानी बंद करो। मेरा किसी और पर जोर नहीं चल सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों मेरी बात मानोगे। मलिक अल्लाह दाद उन्हें रिश्ते की अनदेखी डोर में बांधना चाहते थे, जिस पर वो दोनों ही तैयार नहीं थे, लेकिन दादा के लिए वो एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बात कर सकते थे। दादा जान, क्यों नहीं? उदन हैदर आपके लिए तो कुछ भी कर सकता है। उदन के लहजे में अपने दादा का सच्चा प्यार बोल रहा था। दादा ने अपनी लाडली पोती को देखा तो उसने मजबूरन इस बात में सर हिला दिया। दिल तो कर रहा था उस इंसान का हशर नशर कर दे, लेकिन दादा की मोहब्बत में वो उदन से नफरत वक्त तौर पर भूल सकती थी। अब अगला सीन। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो अपने कमरे में जाने लगी। उदन हैदर ने उसे पीछे से आवाज दी तो उसने मुड़कर पीछे देखा। कहो, उसे तेवरी पर बल चढ़ाकर कहा। आइंदा मैं दादा जान के सामने और तुम भी अच्छे तरीके से बात करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो हमें लेकर टेंशन में आए। उदय ने पैंट्स की पॉकेट में हाथ घुसाते हुए कहा, जिस पर उसने बड़े बड़े तेवरों से उसे घूरा। ये मुनाफकत मुझसे नहीं होती, लेकिन कोशिश करूंगी, सिर्फ अपने दादा के लिए। उसने गोया आसान चितलाने वाले अंदाज में कहा। उदय ने उसे बड़े गौर से देखा। मुस्तजाब ने अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। जो कुछ मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में बोला था उस सबके लिए सॉरी करता हूँ। पता नहीं किस दिल और किस जिगरे से उदन हैदर जैसे अकड़ू इंसान ने ये अल्फाज बोले थे। सो व्हाट, मुझे आपकी सॉरी मंजूर नहीं है। ये कहकर उसने इस्तेज़ाइया अंदाज में उसे देखा। उदन हैदर के दिल में एक तूफान बर्पा हो गया, क्योंकि उसने आज तक किसी से भी सॉरी नहीं की थी, सिवाय अपने दादा के। इतना गरूर और अकड़ तुम में किस बात की है? उसने सख्त लहजे में पूछा। वो जो तुम में नहीं है। वो उसको चढ़ाते हुए वहां से जाने लगी तो उदन हैदर एकदम उसके रास्ते में आ गया। दिल तो कर रहा है तुम्हारे साथ शादी के लिए हाँ करके तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दूं, लेकिन तुम्हारी अकड़ निकालते निकालते मैं अपनी जिंदगी जहन्नुम नहीं बनाना चाहता। ये जो मैंने सॉरी किया है ना, वो सिर्फ मैंने अपने दादा के लिए। बाकी तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ कोई नरम रवैया अपनाया जाए। वो गुस्से में चिंगाड़ता हुआ वहां से अपने कमरे में चला गया। मुस्तजाब उस जगह खड़ी होकर उसके अल्फाज पर गौर करने लगी। शादी करके मेरी अकड़ निकालोगे? शादी करो तो सही, मैंने ना तुम्हारी अकड़ निकाल दी तो हैं? ये मैं क्या सोच रही हूँ? शादी करती है मेरी जूती से। वो अपनी मिली जुली सोचें सोचते हुए किचन में कुछ खाने के लिए लेने गई। वहां रबिया अपने बेटे के लिए फीडर बना रही थी। मुस्तजाब, कल हम बाजार जा रहे हैं, तुम चलो ना हमारे साथ। रबिया ने नरम नरम लहजे में कहा तो उसको हैरानगी से देखने लगी, क्योंकि वो वहां पर उन नरम रवैयों की आदी नहीं थी। नहीं आपी, मैंने क्या करना है जाके? वो फ्रिज से पानी निकालते हुए बोली। तुम बस कल तैयार रहना, तुम हमारे साथ जा रही हो, ओके? रबिया ने प्यार से कहा तो वो वनकों की तरह उसे देखने लगी। ऐसे मत देखो यार, मैं तुमसे अपने गुज़श्ता रवैयों की माफ़ी मांगती हूँ। शायद बड़ों की गलत फहमियों का असर छोटों तक भी आया है। शायद नहीं, बल्कि यकीनन आया है। पता है मेरी कोई बहन नहीं है, और अल्लाह ने मुझे तुम्हारी सूरत में एक बहुत ही खूबसूरत और गुड़िया जैसी बहन दी है। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। मुस्तजाब भी जज्बाती हो गई। थैंक यू आपी। ये कहकर वो जाने लगी तो रबिया ने एकदम से पकड़कर अपने गले से लगा लिया और इसका सर चूमने लगी। दो आंखें थीं जिनको ये मंजर बड़ा ही बुरा लगा। रबिया माँ की घूरती हुई नजरों को देख रही थी। मुस्तजाब, तुम कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में बच्चों को सुला के आती हूँ। राशिदा बेगम को देखकर उसको सारी बात समझ आ गई, इसलिए वो चुप करके अपने कमरे में जाने लगी। जादूगर नहीं आए दोनों माँ बेटी। राशिदा बेगम की बड़बड़ाहट इतनी बुलंद जरूर थी कि दोनों ने बआसानी सुनी थी। मुस्तजाब को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो रबिया की वजह से चुप करके वहां से चली गई। तुम्हें बड़ा प्यार आ रहा है अपनी चच्चा की बेटी पर। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी माँ को वो दोनों अच्छा नहीं समझती और तुम उसके साथ प्यार बगा रही हो। राशिदा ने उसे तीखे चितौनियों से देखते हुए कहा। अम्मी प्लीज बंद कर दें। ये आपसी दुश्मनी क्या मिलेगा आपको ऐसी दुश्मनी निभा के? आइंदा आप मुस्तजाब से इतने बुरे तरीके से बात नहीं करेंगी। रबिया ने गुस्से से कहा तो माँ को तो गोया आग ही लग गई। अच्छा, अब माँ बुरी हो गई और वो दोनों अच्छी हो गई? राशिदा ने गुस्से से कहा। अम्मी, आपको समझाना ही फजूल है।
وہ یہ کہتی ہی کچن سے نکل گئی۔ اب اگلا سین۔ کانٹریکٹ کے مطابق جائشہ کا 1 مہینہ مکمل ہو چکا تھا اور اب وہ پرائم ٹائم میں پروگرام شروع کر چکی تھی۔ اس کی ریٹنگ بہت اچھی آ رہی تھی۔ رضا بھی امریکہ سے واپس آ چکا تھا۔ جائشہ کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ اب مزید محنت سے کام کر رہی تھی۔ اس کی گاڑی آفس سے نکلی تو ایک گاڑی مسلسل اس کے انتظار میں تھی۔ جب ٹریفک کا رش کم ہوا تو اس گاڑی نے آ کر جائشہ کی گاڑی کا راستہ روک لیا۔ اس میں سے ایک آدمی باہر نکلا جس کے ہاتھ میں گن تھی۔ وہ جائشہ کی گاڑی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ لڑکی، اپنی جان کی سلامتی چاہتی ہو تو گاڑی سے باہر نکلو، اس نے کہتے ہوئے اپنی گن لہرائی۔ اپنی گن پیچھے کرو، میں باہر نکل رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر آ گئی تو اس نے ڈرائیور کو بھی باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ اس کو رہنے دو، تمہیں پرابلم مجھ سے ہے، اس بیچارے کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ جائشہ نے سامنے غصے سے آ کر کہا۔ تمہارے حکم کے غلام نہیں ہے۔ چلو صاحب، گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں، اور ڈرائیور گاڑی سے باہر نکلو۔ ٹھیک ہے چلو۔ یہ کہہ کر وہ اس کے بالکل قریب آئی اور ایک زوردار کک اس کے پیٹ میں دے ماری، جس سے اس کے ہاتھ سے گن چھوٹ گئی۔ جائشہ نے تیزی سے نیچے جھک کر گن پکڑ لی۔ اب بتا، کس کا پالتو ہے؟ یہ کہہ کر اس نے گن اس کی کن پٹی پر رکھی تو اس لڑکی کی بہادری پر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ ابا، کس نے بھیجا ہے تجھے؟ اسے چیخ کر کہا تو دوسری گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک سوٹی بوٹی نوجوان آنکھوں پر کالا چشمہ چڑھائے باہر نکلا۔ واو، امیزنگ! اس کو چھوڑ دو، یہ میرا پالتو تھا اور اب نہیں رہا، کیونکہ یہ آج ایک لڑکی سے پٹا ہے اور میر ارسلان کے پاس اب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک دھکے سے اپنے آدمی کو نیچے گرایا۔ جائشہ نے اپنی گن کا رخ میر ارسلان کی طرف کر دیا۔ نا 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 نا، میں ان کھلونوں سے کبھی نہیں ڈرا، لہٰذا اس کو پیچھے کر لو، اس نے جائشہ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو جائشہ نے گن کا رخ نیچے کر دیا۔ کیا چاہتے ہو اور میرا راستہ کیوں روکا ہے تم نے؟ جائشہ نے غصے سے کہا تو مقابل نے بڑی دلچسپی سے کڑی تیور والی لڑکی کو دیکھا۔ بولتے بھی اچھا ہو، بہادر ہو، نڈر بھی ہو، آئی ایم امپریسڈ، میر ارسلان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اصل بات کی طرف آؤ مسٹر، کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ وہ غصے سے گھورتی ہوئی بولی۔ ایسے نہیں، کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ آفر تو ایسے کر رہے ہو مجھے جیسے میری تم سے بڑی پرانی دوستی ہو، اس نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ ہے نہیں، لیکن ہو تو سکتی ہے، اس کے لیے ایک جگہ بیٹھنا ضروری ہے، میر ارسلان نے اسے سرتا پا گھورتے ہوئے کہا۔ اپنی بکواس بند کرو مسٹر، تم جیسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا تو دور کی بات ہے، میں دیکھنا بھی گوارا نہ کروں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی تو میر ارسلان ایک دم سے اس کے راستے میں آیا۔ میری بات سنے بغیر تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ جائشہ نے ادھر ادھر دیکھا تو کئی لوگ ان کی طرف متوجہ تھے۔ ٹھیک ہے، اپنی گاڑی کسی ریسٹورنٹ کے سامنے روکو، میں اپنی گاڑی میں تمہارے پیچھے آتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر مقابل کا جواب سنے بغیر اپنی گاڑی میں آ بیٹھی۔ کچھ سوچتا وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے آ کر رکی تو جائشہ کی گاڑی بھی رک گئی۔ میر ارسلان اس کو اشارہ کرتے ہوئے ریسٹورنٹ میں داخل ہوا۔ اس کو بھی اس کی تقلید کرنی پڑی۔ کیا پیو گی، چائے یا کافی؟ میر ارسلان نے کرسی گھسیٹتے ہوئے کہا تو وہ حیرت سے اس انسان کو دیکھنے لگی۔ مسٹر، جو بات کرنی ہے کرو، مجھے گھر پہنچنا ہے، یہ کہتے ہوئے اسے اپنی گھڑی دیکھی۔ چلو ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں، بتاؤ کتنے پیسے لوگی اپنی زبان بندی کے؟ اس نے اپنا سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ بیہیو یور لینگویج، میری زبان کی قیمت تم لگا ہی نہیں سکتے، کیونکہ سچ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، یہ اپنی قیمت آپ ہی ہوتا ہے، جو تم جیسے ضمیر فروش کیا سمجھیں، اس نے دھاڑتے ہوئے کہا تو مقابل کی آنکھوں میں بھی غصہ آ گیا۔ تم جیسی لڑکیوں کی پتہ ہے پرابلم کیا ہوتی ہے، اس طرح کے لیکچر دے کر اپنی قیمت بڑھاتی ہیں، تمہیں ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا، اس نے بڑے آرام سے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے کہا۔ میں کب سے تمہاری بکواس برداشت کر رہی ہوں، میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہی ہو، وہ یہ کہتا ہوا اس کے قریب آیا، اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر زمین پر دے مارا اور اس پر اپنے بوٹ رکھ کر اس کا کریا کرم کر دیا۔ وہ اپنے موبائل کا حشر نشر دیکھ کر اسے غصے سے گھورنے لگی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم میری ریکارڈنگ کر لو گی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، اس نے دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اپنے دلاور ملک کو بتا دینا کہ میں اس کے گنڈوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں، اگر مرد ہے تو سامنے آ کر مقابلہ کرے، اس نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا اور وہاں سے باہر نکل گئی اور میر ارسلان اس کے اس قدر صحیح اندازے پر حیران ہوتا اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ اب اگلا سین۔
दादा जान, मैं कल बख्शू बाबा के साथ गांव के छोटे से अस्पताल का विजिट करके आई हूँ, जहाँ पर डॉक्टर तो ना होने के बराबर हैं और कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन रखे हुए हैं, उनमें से भी कुछ एक्सपायर हैं। दादा जान, मैं ये चाहती हूँ कि उस अस्पताल की सफाई सुथराई की जाए और बहुत सारी दवाइयाँ लाकर रखी जाए, ताकि गांव वालों को जब जरूरत पड़े तो बवक्त जरूरत वहां से दवाई तो ले सके ना। आप ताया जान से बात करें, वो ये सब कर सकते हैं। मुस्तजाब ने फिक्रमंदी से कहा तो वो चुप कर गए और कुछ सोचने लगे। दिलावर को कहता हूँ, अगर उसने बात ना मानी तो उदन से बात करता हूँ। तुम दवाइयों की लिस्ट तैयार करो। वो उसे देखते हुए बोले तो वो खुश हो गई। आप अभी बात करें। उसकी आवाज में बेसब्रापन था, जिस पर दादा के चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई। ठीक है मेरी गुड़िया, मैं आज ही बात करता हूँ। उन्होंने उसे तसल्ली दी। मलिक अल्लाह दादा ने जब दिलावर से बात की तो हत्थे से ही उखड़ गया। बाबा जान, मुझे पता है सब करने को आपको कौन कह रही है। दिलावर मलिक ने भड़क कर कहा। दिलावर, नेकी का काम है। आखिर तुम एक अच्छा काम करने में इतनी पसोपेश क्यों करते हो? और ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि इलेक्शन जीतकर तुम यहाँ से मुंतखब हुए हो। बाबा जान, मैं आपकी पोती के हुक्म का गुलाम नहीं हूँ। जब मेरा दिल करेगा तब मैं ये सब काम करवा दूंगा। वो ये कहता हुआ नकुवत से वहां से उठ गया और मलिक दिलावर अपने बेटे की बेहिसी पर अफसोस करते रह गए। दादा जान, आप परेशान ना हो। आप अपने लाडले पोते से बात करें ना, वो तो आपकी बात नहीं टालेगा। मुस्तजाब जो पिलर के पीछे खड़ी होकर मलिक दिलावर की गुफ्तगू सुन चुकी थी, दादा को परेशान देखकर कहा। ठीक है, मैं कल ही उससे बात करता हूँ। वो ये कहकर उठने लगे तो मुस्तजाब ने उठने में उनकी मदद की और उनको कमरे में ले गई। जब से वो गांव के इस छोटे से अस्पताल का दौरा करके आई थी, वो निहायत तकलीफ में थी, क्योंकि वहां पर एक्सपायर दवाइयां भी पड़ी हुई थी जो गांव के लोग इस्तेमाल कर रहे थे, जिनको वो ज़ाया कराई थी। लेकिन अब उसने तहिया कर लिया था, जब तक बड़ा अस्पताल नहीं बन जाता वो इस छोटे से अस्पताल को ठीक करेगी। उससे सब्र नहीं हो रहा था, इसलिए वो उठकर उदन के कमरे की तरफ चल पड़ी और कुछ सोचकर दरवाजे पर नॉक किया। यस की आवाज़ पर वो अंदर आई तो वो ट्राउजर और बनियान पहनकर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। इसको देखकर लम्हा भट्ट को झटका, फिर फ़ोन बंद करके उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। एक लम्हे के लिए वो उसको देखकर नर्वस हो गई, तो उधर ने अपनी शर्ट जो पास ही थी उठाकर पहन ली। जी, कैसे आना हुआ? लहजा हर तासुर से आ रही था। वो, मैं ये बात करने आई थी कि कल गांव के हॉस्पिटल का, बल्कि हॉस्पिटल कहना तो उसे एक मजाक ही होगा। बहरहाल मैं वहां गई थी और वहां की हालत देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। वो ये कहकर जरा रुकी। तो मैं दुख हुआ है तो मैं क्या करूं? उदन ने कटीलेपन से कहा तो उसको उदन पर बड़ा अफसोस हुआ। शायद ये लोग आपकी जिम्मेदारी हैं, जिनको आप लोग पूरा नहीं कर रहे। उसने भी भव्य कहकर बड़े तन से कहा। तुम्हें हमारी जिम्मेदारियां बताने की कोई जरूरत नहीं है। जब मेरा दिल करेगा तो मैं कुछ कर दूंगा। उदन ने बड़े आराम से कहा। आपका दिल करने तक कितने ही बीमार मौत के मुंह तक पहुंच जाएंगे। उससे आपने सख्त लहजे में कहा तो उसके करीब आया। तुम रात के 12 बजे मेरे कमरे में मुझे मेरी जिम्मेदारियां याद दिलाने आई हो? ये पाकिस्तान है मैडम, लंदन नहीं। अब तुम जा सकती हो। उसने बड़े आराम से मुस्तजाब को बहुत कुछ बावर कराते हुए कहा। बिल्कुल अपने पापा की तरह हो, बेहिस। मुस्तजाब ने गुस्से से कहा। दफा हो जाओ यहाँ से और आइंदा मेरे कमरे में कदम ही ना रखना। वो गुस्से से दहाड़ा तो मुस्तजाब का दिल किया इसका खूबसूरत चेहरा बिगाड़ दे। एकदम से उसके चेहरे पर एक चमक उभरी। लगता है आज उस लड़की ने काफी इज्जत अफजाई कर दी है। मुस्तजाब ने बड़े आराम से मुकाबले को सेख पा किया, जिसमें वो कामयाब भी होगी। गेट लॉस्ट फ्रॉम माई रूम। ये कहते हुए उसने मुस्तजाब को बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर निकालकर दरवाजा जोर से बंद किया। तौहीन तो हुई थी, लेकिन मुकाबिल को भी आग लगी थी, जिस पर मुस्तजाब को गोना गो सुकून मिला था। तुम उदन के कमरे में क्यों गई थी? तस्लीम जो उसे उदन के कमरे से निकलते हुए देख चुकी थी, उसको गुस्से से कहा। मामा, मैं उससे जरूरी बात करने गई थी, लेकिन वो तो जला बुना बैठा था। उसकी निगाहों के सामने उदन का जो झुलाया हुआ चेहरा घूम गया। फिर उसने माँ को सब बता दिया। बेटा, आइंदा तुम रात को उसके कमरे में बिल्कुल भी नहीं जाओगी। यहाँ पर कहानियां बनने में देर नहीं लगती। तस्लीम के लहजे में हल्की सी डांट थी, जिस पर उसने सर इस बात में हिला दिया। अब अगला सीन। जायशा ऑफिस में बैठी काम कर रही थी जब मुलाजिम उसे एक खूबसूरत पैकिंग में कुछ देकर गया तो वो हैरान होकर उलट पुलट कर उसे देखने लगी। फिर उसने उस डब्बे को खोला तो इसमें लेटेस्ट मॉडल का आईफोन बरामद हुआ। बीच में एक चिट थी जिसमें मीर अरसलान का नाम लिखा हुआ था। ये सब पढ़कर गुस्से से अपनी मोटियां भींचने लगी। उसने गुस्से से मोबाइल को खींचकर जमीन पर दे मारा, फिर उसको उठाकर जमीन पर दे मारा।
यहाँ तक कि वो किरची किरची हो गया। फिर उसने उसे डब्बे में डालकर अपने ड्राइवर के हाथ मोबाइल मीर अरसलान को वापस भेज दिया। मीर अरसलान उस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद नहीं था। जब वो वापस आया तो मुलाजिम ने उसे वही डब्बा पकड़ाया जो उसने जायशा को भेजा था। वो पहले हैरान हुआ, फिर उसको खोला। अपने मोबाइल का हशर नशर देकर एक लम्हे को तो गड़बड़ा कर रह गया। इतना गरूर, अब मजा आएगा, वो जेर मुस्कुराते हुए कहने लगा और मोबाइल पर कोई नंबर मिलाने लगा। जी अंकल, कैसे हैं आप? पापा तो नेक्स्ट वीक आएंगे, वो अपनी थोड़ी पर हाथ फेरते हुए बोला। बेटा जी, अभी तक बच्चे हो इन कामों में, पापा को आ लेने दो, वही इस मसले को हल करेंगे। दूसरी तरफ से कहा गया तो मीर अरसलान की पेशानी शिकनों से भर गई। अंकल, ये मामला अब मैं ही देखूंगा, अब आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे, यहाँ तक कि मेरे डैड से भी नहीं। आपकी लहजा सख्त था, जिसे दूसरी तरफ काफी बुरा माना गया। ठीक है, मैं कुछ दिन इंतजार कर लेता हूँ, ये कहकर दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया गया और मीर अरसलान ने एक मुक्का बनाकर टेबल पर दे मारा। बड़ी टेढ़ी खीर है ये लड़की, मगर इस टेढ़ी खीर को खाने में मजा आएगा, ये सोचते हुए उसकी आंखों में नाफहम तासुरात थे। मुस्तजाब की रबिया के साथ काफ़ी बन रही थी। रबिया मुस्तजाब को अपने साथ ज़बरदस्ती बाजार ले गई। मुस्तजाब ने भी शादी के लिए शॉपिंग की। पैसे रबिया ने दिए तो मुस्तजाब ने उसको ये कहकर वापस कर दिए कि अगर वो पैसे देगी तो कपड़े ही नहीं पहनेगी। रबिया ने बुरा तो बहुत माना, लेकिन मुस्तजाब ने उसे मना लिया। वो शॉपिंग करके घर आई तो राशिदा बेगम मुस्तजाब को कीना तोड़ नजरों से घूर रही थी। रबिया अपनी माँ की घूरियों को इग्नोर करते हुए अपने कमरे में चली गई। जब मुस्तजाब उठकर जाने लगी तो राशिदा बेगम ने उसको रोक लिया। तुम दोनों माँ बेटी कब जा रहे हो वापस? राशिदा ने घूरते हुए पूछा। आपको क्या मसला है? मुस्तजाब ने भी तेवरी चढ़ाते हुए पूछा। मसले की कुछ लगती, जब से हवेली आई हैं आप दोनों, आए ना आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। मेरी अपनी बेटी मुझे गलत समझने लग गई है। हम लोगों का सुकून बर्बाद किया हुआ है। जाओ यहाँ से ताकि हमें भी सुकून आए, राशिदा ने नागवारी से कहा। आपकी बेटी तो आपकी अपनी वजह से आपके खिलाफ हुई है, और आप मुझे यहाँ से जाने के लिए कहने वाली होती कौन है? मेरे बाप का घर है ये, कौन मुझे निकाल सकता है यहाँ से? अब तो मेरा दिल कर रहा है यहाँ से जाऊं ही ना। मुस्तजाब ने भी इस्तेहज़ाई अंदाज में कहा तो राशिदा बेगम को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। जिस बाप का हक था वो तो अब मर गया है, तुम लोगों का इधर हक है ही नहीं, राशिदा बेगम ने कुराते हुए कहा। ये तो आपको वक्त बताएगा किसका हक है और किसका हक नहीं। आप लोग हमेशा दूसरों की चीज़ों पर कब्जा करने वाले लोग हैं। वो बरहमी से कहती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, क्योंकि राशिदा बेगम चीखने लग गई थी। हमारे ही घर में बैठकर हमें चोर लुटेरे बना रही है ये लड़की, पता नहीं कब दफा होंगे ये दोनों माँ बेटी। वो वावेला कर रही थी कि रबिया अपने कमरे से बाहर आई। अम्मी प्लीज बस करें, क्यों मुफ्त में अपना खून जला रही हैं? उसे अपनी माँ को प्यार से समझाना चाहा। तुम उसके साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ा रही हो जो तुम्हारी माँ की इतनी बेइज्जती करके गई है। कहती है हम चोर लुटेरे हैं, हम दूसरों का हक छीनते हैं। राशिदा बेगम ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। मैं बात करूंगी मुस्तजाब से, आपने भी कुछ कहा ही होगा जो उसने ऐसा बोला है। रबिया अपनी माँ की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थी। अच्छा, अब अपनी माँ पर इल्जाम लगाओ कि मैंने ही कुछ कहा होगा। देखा, मैं ना कहती थी ये दोनों माँ बेटी जादूगरनियां हैं। राशिदा बेगम का वावेला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। रबिया हार मानकर तासुब से सर हिलाती हुई अपने कमरे में चली गई। अब अगला सीन। चौधरी इकराम अपने बेटे को लेकर हवेली पहुंचा तो दिलावर मलिक घर में ही मौजूद था। मलिक अल्लाह दाद को पता चला तो गुस्से से कांपने लगे। उसकी ये जुर्रत कि वो हमारी इज्जत के साथ खेले और वो दंदनाते हुए हमारे घर भी आ गया। बाबा जान, वो अपने किए की माफी मांगने आया है। दिलावर मलिक ने वजाहत दी तो मशकूक नजरों से अपने बेटे को देखने लगे। दिलावर साहब, अब हमारी बेटी को भी बुला दें, उससे भी माफी तलाफी हो जाए। चौधरी इकराम ने मुस्कुराते हुए कहा तो मलिक अल्लाह दाद ने चौंक कर दोनों बाप बेटे को देखा। इकराम, तुम दोनों बाप बेटे अपने किए पर शर्मिंदा हो, इसलिए मैं चुप कर गया हूँ, नहीं तो मलिक अल्लाह दाद को अच्छी तरह पता है कि वो घर की इज्जत के साथ खेलने वाले को कैसे जमीन में गाड़ते हैं। मलिक अल्लाह दाद ने नागवारी से दोनों बाप बेटे को देखते हुए कहा। मलिक साहब, अब तो ये ज्यादती है, आपके पोतों ने भी हमारे बंदों पर गोलियां मारी हैं। अभी हम इसलिए आ गए कि हमें नहीं पता था कि वो आपकी पोती है, अगर उस नालायक को पता होता तो ये सब ना करता। चौधरी इकराम ने आराम से कहा। यह बात तो गलत है, गरीब की बेटी और अमीर की बेटी दोनों बराबर ही होते हैं, किसी की इज्जत पर हाथ नहीं डालना चाहिए।
ये सब तुम लोगों को समझना चाहिए, मलिक अल्लाह दाद ने लताड़ने वाले अंदाज में कहा। सुरैया, जाओ जाकर मुस्तजाब बेटी को बुला कर लाओ। मलिक दिलावर ने बड़े प्यार से कहा तो लहजे की ये शरीनी मलिक दार को हजम ना हुई। थोड़ी देर बाद मुस्तजाब हवेली के मेहमान खाने में दाखिल हुई तो मुकर्रम को देखकर गुस्से से पागल हो गई। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ पर आने की, घटिया इंसान। वो गुस्से से आगे बढ़ी लेकिन दिलावर ने बड़े प्यार से उसके हाथों को थाम लिया। मुस्तजाब बेटा, ये तुमसे माफी मांगने आए हैं, उम्मीद है कि तुम इसे माफ कर दोगी। दिलावर के लहजे की नरमी ने मुस्तजाब को भी चौंका दिया। मैं इसे किसी सूरत भी माफ नहीं करूंगी। मुस्तजाब ने उसे शोला बार नजरों से घूरते हुए कहा तो अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। देखें, मुझे नहीं पता था कि आप दिलावर अंकल की भतीजी हैं, नहीं तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। उससे मुस्तजाब पर अपनी घटिया नजर काटते हुए कहा। अच्छा, तो किसी और की बेटी क्या इंसान नहीं होती जो आप जैसे लोग अपनी हवस मिटाने के लिए उठा लेते हैं? लानत हो आप जैसे लोगों पर। वो ये सब कहते हुए गुस्से से वहां से चली गई और एक मलिक अल्लाह दाद को अपनी पोती पर फख्र महसूस हुआ। चौधरी इकराम और उसका बेटा मुकर्रम गुस्से से खौल कर रह गए। बच्ची जरा जज्बाती है, आप जरा ठंडे रहें। मलिक दिलावर ने दोनों बाप बेटे को ठंडा करना चाहा। दिलावर साहब, जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही हम सबके हक में बेहतर है। वो ये कहता हुआ उठ खड़ा हुआ तो दिलावर उसे दरवाजे तक छोड़ने गया। मलिक अल्लाह दाद को ये सब हजम नहीं हो रहा था क्योंकि कई सालों से दिलावर और इकराम की सियासी चपकलिश चल रही थी, क्योंकि वो दोनों सियासी हरीफ थे।